Good evening everyone, welcome to my channel, India's youngest tutor. So this is the second day. So yesterday I have taught you about all the sentences. So yesterday I have not taught you all the parts of sentences. So in the second video, second day, I will teach you all the parts of sentences. So I am giving you an example of interrogative sentence. Interrogative sentence for example. So why do you learn इंग्लिश वाई डू यू लर्न इंग्लिश आप इंग्लिश क्यों सीखते हो वाई डू यू लर्न इंग्लिश और लाइक दिस वेयर डू यू गो आप कहाँ जाते हो वेयर डू यू गो लाइक दिस वाई डू यू लर्न इंग्लिश वेयर डू यू गो WH words in interrogative sentence WH words will be coming. Next comes our imperative sentence. Imperative sentence हमारे होते क्या है Imperative sentence is used to express. Imperative sentence is used to. Imperative sentence is used to express polite request, order, and suggestion. Like I am giving you order. Watch any video. Or shut the door. Please lend me a pen. It is a request. So suggestion. I am giving you suggestion. You may go there. You may learn English. You may speak English like this. I am giving one example of imperative sentence. Shut the door. This is the example of imperative sentence, but I am giving you order. Shut the door. Next, please give me. Please give me your car keys. Please give me your car keys. कृपया मुझे अपनी कार की चाबी दीजिए. This is the example of request. Imperative sentence में request का example है ये. So next comes our exclamatory sentence. Exclamatory sentence हमारे होते क्या है? It is used to express sudden emotions, feelings and etc. Sudden feeling जैसे आपके घर में कुछ चीज आ गई न्यू, जैसे आपके पापा को साइकिल ले आपके लिए, तो आपको एक्सप्रेस हो वाओ व्हाट अ सरप्राइज आई गॉट सरप्राइज अमेज लाइक दिस यू एक्सप्रेस योर फीलिंग लाइक कुछ भी चीज आ गई जो आपको चाहिए थी और आपके घर वाले ने दे दी तो बोलोगे वाओ आई गॉट सरप्राइज लाइक दिस और अगर आपको चोट लग गई तो आउच आई गॉट हर्ट लाइक दिस यू कैन स्पीक सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल आउच आई गॉट हर्ट आउच मुझे चोट लग गई तो आप कुछ गेम खेल लो आप तो जीत गए हुर्रे वी हैव वॉन द मैच हुर्रे हुर्रे वी हैव won the hooray we have won the match so like this it carry on next is optative sentence I think this might be new for you so optative sentence हमारा होता क्या है optative sentence it express prayer wish and desire मतलब ये हमारा prayer desire किसी से प्रार्थना करनी हो किसी को इच्छा देनी हो कुछ desire हो अभिलाष जैसे optative के हुए जैसे may you live long May God bless you. May you score good marks in your exams. Like this, you can pray and think or wish you are giving you prayer that you get full marks. May you get full marks like this. May God bless you. May God bless you. भगवान आपको द्वारे next. So sentence is clear. Sentence is clear to you all. Next, I will teach you what a simple sentence has. Simple sentence. Simple sentence. So, a simple sentence has subject, helping verb, main verb, and object. A simple sentence has four things. Subject, helping verb, main verb, object. I have taught you subject and object I have not taught you. So subject हमारा होता है like I am giving you an example that Ram is learning English. Ram is learning English. In this subject is Ram, is helping verb and learning is main verb and last object is English. So I will teach you about हेल्पिंग वर्ब हमारे होते क्या है हेल्पिंग वर्ब
Helping verb are in three forms. First, present, past and future. हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया. हेल्पिंग, हेल्प से समझ जाइए सहायक, मदद करना है, तो इसका मतलब होता है सहायक क्रिया जो वर्ड में हेल्प करती है. सो प्रेजेंट में हमारा हो गया इज, एम, आर. पास्ट में हो गया वॉज एंड वर. एंड फ्यूचर में हो गया विल, बी, डू, डज, डिड, विल एंड has, have, had, will, have, has, have, will. Next, can, could, will be, able to. These are helping verbs. Is, MR is used in present continuous, past continuous, future continuous, simple present, simple past, simple future, present perfect, past perfect, future perfect. And this is models. So in next video I will teach you these are models. So these all the forms we use in tenses. अगर इसके आगे हम V1 ing लगा देंगे तो हमारी हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये सारे टेंस हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज करते हैं, ये इसका पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस वर्ब का. जब अभी मैंने आपको दिया था एग्जांपल, राम इज इन द कार, ये इसका था राम कार पे है, तो ये आपका था प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल. तो अगर मैं कहूँगा राम इज लर्निंग इंग्लिश, तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये नॉर्मल टेंस का एग्जांपल है. तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट टेंस. सो नेक्स्ट इज आर मेन वर्ब. मेन वर्ब हमारी होती क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया. मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया. मेन वर्ब हमारी होती है 5 फॉर्म में. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट 5th फॉर्म. लाइक डू, डिड, डन एंड इज, डज, डूइंग, डूइंग and does, and is take, took, taken, taking, takes. So in grammar you will see only 3 forms. I have added 2 forms by me only. 4th form is ing form and 5th one is s or es form. तो ये ग्रामर में आप ये 3 फॉर्म ही देखेंगे अभी. तो डू, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म हो गई. फोर्थ फॉर्म हमारी डूइंग हो गई, आईएनजी वाली, एस और एस वाली डज हो गई. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब. जैसे मैंने आपको बोलता राम नहीं, राम वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो प्ले है, तो प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म में आएगा. तो राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो इसके लिए आपका टेंस क्लियर होना चाहिए. तो आपको अभी वो भी क्लियर करवाऊंगा मैं इसी नेक्स्ट क्लास में. So from here all that I teach you is clear to you. So next I will teach you वर्ब. हमारी नॉर्मल जो वर्ब है, वर्ब हमारी होती है, we have categorized verb into 2 parts. First, irregular verb. Second is regular verb. irregular verb and regular verb. irregular verb से समझ आइए मतलब अनियमित क्रिया. अनियमित क्रिया, अनियमित क्रिया. irregular वर्ड का मतलब होता है अनियमित क्रिया और वर्ब का क्रिया. एंड ये हो गई रेगुलर वर्ब हमारी नियमित क्रिया. रेगुलर वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं नियमित क्रिया. तो irregular वर्ब हमारी होती है जिसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होगा. irregular verbs are those whose 3 forms are different. Like I've given you that example: take, took, taken. In this, all the 3 forms are different, so it is said to be an irregular verb. So it is said irregular verb, and regular verb is the ed form. Ed form like bake, baked, and last baked.
In regular verbs are those in which second and third form remain same. Means only ed form. जब हम रेगुलर वर्ब हमारी वो होती है जिसमें ed लगा हो, तो इरेगुलर में तो तीनों डिफरेंट होगा और ये होगा. So this is clear to you. Next I will teach you ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारे होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम इन द लास्ट. ऑलवेज हमारा हमेशा लास्ट में आता है. जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, आई एम गिविंग वन न्यू एग्जांपल दैट आई वांट टू स्टडी हार्ड. तो इसमें हार्ड हमारा वो हो गया ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, देख लीजिए, ये हो गया सब्जेक्ट जो आगे हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हम पीछे लगाएंगे. ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हम पीछे लगाते हैं. तो सब्जेक्ट हो गया आई, ही, सी, इट, यू, वी, दे एंड लास्ट नेम. सो आई का ऑब्जेक्टिव हम पीछे लगाएंगे मी, ही का लगाएंगे हिम, सी का लगाएंगे हर, इट का लगाएंगे इट, यू का यू ही रहता है, और वी का अस हो जाएगा, डे का डैम हो जाएगा, और नेम का नेम. मतलब अब आपको डिटेल में बताता हूँ मैं. आई, जैसे हम पहले फर्स्ट में बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो नॉर्मल सब्जेक्ट फॉर्म हो गया. और इंग्लिश इज लर्न बाय मी, इंग्लिश इज बीन लर्न बाय मी, तो ये मी पीछे आया. ऐसे नहीं हो सकता इंग्लिश इज बीन लर्न बाय आई. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. तो पीछे हम आई का लगाएंगे मी, ही का लगाएंगे हिम, सी का लगाएंगे हर, इट का इट, यू का यू, वी का अस, दे का देम, एंड नेम का नेम ही रहेगा. जैसे द टीचर, नहीं, आई एम अ टीचर, द टीचर स्कोल्ड्स हिम. इट इज रॉन्ग, द टीचर स्कोल्ड ही. तो टीचर ने उसको डांटा, ये हो जाएगा आपका. तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई. सो this all today what I have taught is clear to you all. So I am also a student, I am also learning English like you. So if there is any mistake in my speaking and telling anything, so please correct me, and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.